था तुम्हें। Jesus says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. बाहों में लेने यीशु बुला था तुम्हें। Welcome to the Jesus Calls Gujarat Prayer Festival. Jesus Calls Prayer Festival ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે. Jesus calls and God bless you. ઈસુ તમને બોલાવે છે અને પ્રભુ તમને આશીર્વાદ આપે. My precious brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, I'm so happy to see you all through this program. और मुझे बड़ी खुशी है इस कार्यक्रम के द्वारा आप हमें देख रहे हैं। Surely God is here. निश्चित रूप से परमेश्वर यहाँ है। God will surely bless you all. निश्चित रूप से परमेश्वर आप सभी को आशीष देगा। I'm going to read out to you a beautiful verse from the Bible. और मैं आपके लिए बाइबल में से बहुत ही सुंदर वचन पढ़ूंगी। If you have your Bible, turn your Bible to Psalm 17, the last verse, 15th verse. और यदि आपके साथ आपकी बाइबल है तो आप निकालें भजन संहिता उसका 17वां भजन और 15वां पद। This is the prayer of David. और ये है दाऊद की प्रार्थना। He says, as for me, I will see your face in righteousness. और परंतु मैं तो धार्मिकता के कारण तेरे मुख का दर्शन करूंगा। I shall be satisfied when I awake in your likeness. जब मैं जाग उठूंगा तो तेरे स्वरूप को देखकर तृप्त हो जाऊंगा। As he has prayed, we must also pray the same prayer. और जैसे दाऊद ने प्रार्थना की ठीक वैसे ही हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। When we look to Jesus, जब हम यीशु को देखते हैं, his brightness, his life, his image will come into your life. उसका तेज, उसका जीवन, उसका स्वरूप आपके जीवन में आ जाता है। Today you are going to experience such a life और आज आप एक ऐसे जीवन का अनुभव करेंगे by asking Jesus to come and occupy your life. और ये तभी कर सकेंगे जब आप यीशु मसीह से कहेंगे कि वो आकर आपके जीवन पर अपना अधिकार करे। The presence of God will give you so much blessings. और परमेश्वर की उपस्थिति आपको इतनी आशीषें देंगी। Receive and be blessed. और इसे लें और आशीष पाएं। My precious sisters, मेरी प्रिय बहनों, Colossians chapter 4 verse 12 says, कुलुसियों 4:12 इस तरह से कहता है, stand perfect and complete in all the will of God. प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। Every one of you should do the will of God through this EPG prayer. इस यस्सर प्रार्थना समूह प्रार्थना के द्वारा आप प्रत्येक जनों को परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना होगा। John 15:16 says, यूहन्ना 15:16 इस तरह से कहता है, God has chosen every one of you प्रभु ने आप प्रत्येक जनों को चुना है and appointed you to give fruit. और आपको नियुक्त किए हैं कि आप फल दे। Our fruit should remain. और हमारा जो फल है हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए। That kind of ministry God has given in your hand. प्रभु ने इस तरह की सेवकाई आपके हाथों में दिए हैं। John chapter 1 verses 4 and 5 if you read, भजन संहिता 1, 4 और 5 इस तरह से कहता है, Jesus, there is life. यीशु में ज्योति है And the life was the light of men. और जो जीवन है मनुष्य का जीवन है। When the light comes into our soul, जब ये जो ज्योति हमारे जीवन के अंदर आती है, He removes all the darkness. प्रभु सारे अंधकार को दूर कर देते He हैं। removes all the darkness. प्रभु सारे अंधकार को दूर कर देते And हैं। same John chapter 1 verse 9. यूहन्ना 1:9 इस तरह से कहता है, Jesus was the true light. और यीशु वही ज्योति है True light. और वही सच्ची Which ज्योति gives है light to every man. और वो ज्योति सब मनुष्य को ज्योति देती है। The Lord will give you that light. प्रभु वही ज्योति आपको देंगे। 2 Corinthians chapter 4 verse 6 if you read, 2 कुरिन्थियों 4:6 इस तरह से कहती है, when you start shining, जब आप चमकना शुरू करेंगे, praise
face of the Lord will be seen in your face. प्रभु का जो चेहरा है आपके चेहरे के ऊपर देखिए। What is that light? और वो ज्योति क्या है? Jesus Christ himself is the light. और वो स्वयं यीशु मसीह ज्योति के रूप में आए So हैं। what a glorious life it is to live with Jesus. कितना महिमामय जीवन है यीशु को देखना। When we are close to the Lord Jesus Christ, और जब हम प्रभु यीशु के निकट है, He will remove all darkness from our life. प्रभु हमारे जीवन से सारे अंधकार को दूर कर देंगे It will be full of the light of Jesus. और वो पूरा यीशु की ज्योति से भर जाएगा। John 8:12 if you read, अगर आप यूहन्ना 8:12 को पढ़ेंगे, Jesus said, यीशु कहते हैं, I am the light of the world. और मैं इस संसार की ज्योति हूँ He who follows me shall not walk in और darkness, वो जो मेरा पीछे अनुगमन करते हैं वो कभी अंधकार में नहीं चलेंगे, but have the light of life. उनके पास जीवन की ज्योति होगी। If you read 1 Corinthians chapter 5, अगर आप पहले कुरिन्थियों 5 को पढ़ेंगे, 6 and 7, 6 और 7 को, a little leavens the whole lump. और थोड़ा सा जो खमीर है पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। Therefore, इसीलिए purge out the old leaven that you may become a new lump. इसलिए आपके जीवन के अंदर जो पुराना खमीर है उसको बाहर निकालिए और नया व्यक्ति बन जाइएगा। Little leaven, old leaven should not be there in our life. और थोड़ा सा भी खमीर हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। Little unwanted talk, और छोटा सा भी जो अनचाहा जो बात है नहीं होनी चाहिए, it should not be there. और वो हमारे जीवन में नहीं होनी It will चाहिए। spoil the whole spiritual life in your life. और वो आपके पूरे आत्मिक जीवन को नाश कर देगा। So how much we have to be careful to be in the light. इसलिए ज्योति में रहने के लिए आपको कितना ध्यान पूर्वक रहना होगा। If you read Daniel 11:32, अगर आप दानियल 11:32 को पढ़ेंगे, you will shine before men कि तू मनुष्य के सामने and चमकेगा they will see your good work और वो तेरे भले कार्य को देखेंगे and glorify your Father. और प्रभु की महिमा करेंगे। Not only और that, यही if नहीं, you read Daniel 11:32, अगर आप दानियल 11:32 को you पढ़ेंगे, will be strong, आप बलवंत होंगे, carry out great exploit. आप महान कार्य करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You'll shine like star. आप नक्षत्र के रूप में चमकेंगे। Hallelujah. हालेलुया। You'll be shining like the noonday sun. आप तेजमय सूर्य की तरह चमकेंगे। What a great Lord you have. आपके पास कितना महान परमेश्वर है। Ephesians chapter 4:13 and 15 says, इफिसियों 4:13 और 15 इस तरह से कहता है, we should all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of और God, हमें परमेश्वर के पुत्र में ज्ञान और उनकी एकता में आना होगा to become a perfect man. और एक परिपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए। This blessing will come upon each one of you. और प्रभु की आशीष आप प्रत्येक जनों के जीवन में I'm आएगी। going to pray with a real burden that God should give every one of you this burden. मैं सच्चे बोझ के साथ प्रार्थना करने वाली हूँ कि प्रभु ऐसा बोझ आप प्रत्येक जनों को दे, To heal the broken hearted, टूटे हुए हृदय वाले को चंगा करे to comfort those people. और सांत्वना दे उन लोगों को। From today it will start in your life. और आज के दिन से आपके जीवन में होगा। Hallelujah. हालेलुया। Finally, और आखिरी you'll में, be transformed into His image. और आप उसके रूप के अनुसार परिवर्तित हो जाएंगे। Whether you like it or आप not, चाहे या ना चाहे, become like Jesus. आप यीशु की तरह बन जाएंगे। See the lives of the disciples. और आप शिष्यों के जीवन की तरफ देखिए, They were not close to the Lord. और वो प्रभु के निकट नहीं थे They were living with Him for 3.5 years. और 3.5 वर्ष वो प्रभु यीशु के साथ थे, But their mind was little bit away from the എന്നാൽ ഹൃദയം will of പലപ്പോഴും the Lord. परंतु उनका जो मन था प्रभु की इच्छा से अलग था। The Lord wanted them to shine for His glory. प्रभु चाहते थे कि उनके जो शिष्य हैं प्रभु के नाम की महिमा के लिए If you read चमके। 1 John chapter 4 verse 17, अगर आप पहला यूहन्ना 4:17 को पढ़ेंगे, He wanted them to shine like Him. और वो प्रभु चाहते थे कि वो शिष्य उनकी तरह चमके, As He is, so are we in this world. और जैसे यीशु है उसी तरह हम भी इस संसार में हैं। For that, what you have to do? इसके लिए आपको क्या करना है? 2 Corinthians chapter 3 verse 18 says, 2 कुरिन्थियों 3:18 इस तरह से बाइबल कहती है we should be transformed like Him. कि हमें प्रभु की तरह परिवर्तित होना चाहिए। When they were got transformed, और कब वो परिवर्तित हुए? we read Acts chapter 1 verse 5. अगर आप प्रेरितों के काम 1:5 को पढ़ेंगे, Now the Lord Jesus is going to go back to
heaven to sit with his और father. प्रभु यीशु अभी वापस उनके पिता परमेश्वर के साथ सिंहासन में स्वर्ग बैठने जा रहे हैं। Now these people will be left alone. और ये जो लोग हैं उनके शिष्य अलग हो जाएंगे। That time, उस समय Lord said, wait at the feet of God. प्रभु ने कहा आप प्रभु के चरणों में बैठे रहिए Then the power of God will come upon you. और फिर प्रभु की सामत आपको भर देगी। And the power of God, when it comes, you'll start shining for और my प्रभु glory. की सामत आपके जीवन में आएगी, आप प्रभु के नाम की महिमा के लिए चमकेंगे। This power of God will come in each of your life. और आज के दिन ये प्रभु की सामत आप प्रत्येक जनों के जीवन में They were आएगी। also like that. They were sleeping. और वो सो रहे थे They were taking everything light. और वो सब कुछ साधारण से ले They रहे थे received the power of God. और उनको प्रभु की जो सामत मिली थी They became like Jesus. और वो यीशु की तरह बन If गए। you read Acts 4:13, अगर आप प्रेरितों के काम 4:13 को people पढ़ेंगे, are wondering, लोग सोच रहे थे oh, so much power, कितना सामत है, so much power. कितना सामत They are है। uneducated people. और ये अनपढ़ लोग हैं Where they have so much और knowledge, इनको कहाँ से इतना ज्ञान so much होगा wisdom. और इतना बुद्धि है Same blessing will come upon you. और यही आशीष आपके जीवन में God आएगी। is going to use every one of you. प्रभु आप प्रत्येक जनों का इस्तेमाल करेंगे How they were used after that, और उसके बाद प्रभु ने उनका कैसा इस्तेमाल किया, same way, उसी तरह will be used mightily. प्रभु आपको भी सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल Are करेंगे। we ready to receive that blessing? क्या आप इस आशीष को प्राप्त करने के लिए तैयार है? If you read Matthew chapter 25, अगर आप मत्ती 25 को 1 पढ़ेंगे to 13, 1 से 13 see तक about the 10 virgins. और वहाँ पर हम 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ते हैं 5 were wise and the other 5 were not. और 5 बुद्धिमान थे, 5 बुद्धू थे। What is the difference between both of them? और इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? 5 virgins having oil with them. 5 कुंवारियों के पास तेल था But these people were never cared to have sufficient oil. और इन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि उनके पास पर्याप्त हो। This is the difference between both of them. और यही अंतर है इन दोनों के बीच में। When the time came and the bridegroom came, these 5 virgins, wise people, could not enter जब into. समय आया और जब दूल्हा आया, जब ये बुद्धू स्त्री थे वो परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। Now check up your life. आप अपने जीवन को Are you जानिए। ready? क्या आप तैयार है? Are you filled with the Holy Spirit without measure? क्या आप पवित्र आत्मा से अत्यधिक रूप से भरी If हुई you है? read Psalm 23 verse 5, अगर it आप says, भजन संहिता 23:5 को पढ़ेंगे, it should be overflowing. उमड़ता हुआ, It should be आपको overflowing. उमड़ते हुए आत्मा से भरना होगा। Are you overflowing, my क्या मेरी sister? बहन आप उमड़ते हुए आत्मा से भरी हैं? How much time you spend alone with the आप Lord? अकेले प्रार्थना में कितना समय प्रभु के साथ बिताती है See the power of और God. प्रभु के सामर्थ को प्राप्त करती है। More you are filled with the power of God, आप जितना प्रभु की आत्मा से भरी रहेगी the more you will be able to fulfill the will of God. और आप उतना ज्यादा प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकेंगे। Let me explain to you what has happened to me. और मैं ये बताऊंगी कि मेरे जीवन में क्या हुआ। In the year 2008, I lost my husband. वर्ष 2008 में मैंने मेरे पति को खो दिया। I thought that's all. Everything मैंने is सोचा कि over. मेरा जीवन खत्म हो चुका है, I cannot do any मैं कोई ministry. सेवकाई नहीं कर पाऊंगी, Without my husband, I cannot move मेरे an पति inch. के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। After और 2 2 दिन days, के बाद my son was planning the memorial service. और मेरा जो बेटा है मेमोरियल सर्विस की तैयारी कर रहा था। Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने कहा, Stella, you must speak in that meeting. स्टेला तुझे उस सभा में बात करना होगा। How to speak? मैं कैसे बात Heart करूंगी? is overburdened with agony. और मेरा जो हृदय है दुख से भरा हुआ था उस समय Thousands of people will gather. और हजारों लोग वहां पर होंगे। How can I speak? मैं कैसे उनके सामने बात करूं? Hallelujah. I was filled with the Holy Spirit और तुरंत immediately. पवित्र आत्मा से मैं भर गई I was strengthened और with the मैं Holy पवित्र Spirit. आत्मा के द्वारा बलवंत हुई। That is the greatness of receiving और the Holy यही Spirit. है महानता पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का। When you are burdened with various agony जब and all आप sorts अनेक of तरह की things, समस्याओं के कारण बोझ के साथ दबे हुए और अपने आप को महसूस करते हैं, when you spend time जब with आप the प्रभु Lord, के साथ समय बिताएंगे, when you look जब आप at प्रभु Him, की तरफ देखेंगे Lord, you are my कि only आप हमारी hope. आशा है, Strengthen my soul. मेरे आत्मा को बलवंत कीजिए, Strengthen my body. मेरे शरीर को बलवंत कीजिएगा। Hallelujah. हालेलुया। Lord will be pleased to strengthen you. प्रभु आपके साथ रहेगा, आपको बलवंत Day करेंगे। came. और वो दिन आया Memorial service was going और मेमोरियल सर्विस चल रहा था and
my time came. और उस समय मेरा समय आया। Everybody was wondering, सब लोग सोच रहे थे how can she speak? कैसे ये बात करेगी। And I stood there. मैं वहाँ पे खड़ी हुई Power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की I सामर्थ, spoke for 20 minutes. मैं 20 मिनट मैंने बात किया No tears. और कोई आंसू नहीं, I spoke with authority. और मैंने अधिकार के साथ बात किया। People are wondering. सब लोग सोच रहे थे From that day और उस दिन से until today, आज the तक, same Holy Spirit is guiding me in a और beautiful वही way. पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा है सुंदरता के He is साथ, speaking to me. मुझसे बात करता When I है। lost my husband, after some time the Lord said to my son Paul, go to Canada to do my और ministry. प्रभु ने मेरे पुत्र को कहा कि तू कनाडा जा, वहाँ सेवकाई कर, I have a plan for you. और तेरे लिए मेरी एक योजना है, And he has to leave me. और उसे मुझे छोड़कर जाना All था, were left. और सब छोड़कर I चले was गए। all alone in the same house. उस घर में मैं अकेली थी। People are wondering, सब लोग सोच रहे थे how she's going to live. कैसे ये अकेले My रहेगी। sisters, मेरी प्रिय it's बहनों, because of the power of God. पवित्र आत्मा की सामर्थ I के द्वारा, started doing the ministry much more than what I was doing before. और पहले से ज्यादा मैं प्रभु की सेवकाई करना शुरू हुई। People are wondering, सब लोग सोच रहे थे, people are wondering, सब लोग सोच रहे at थे this age, इस उम्र में भी how she's able to do so much. कैसे इतना सेवकाई कर पाती है। I don't know whether I have told you last time. मुझे ये नहीं मालूम कि मैंने पिछली बार कहा या Paul नहीं। came from Australia, Singapore and Fiji Island. मेरा पुत्र ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, फिजी द्वीप से घर वापस I आया had to preach 17 messages. और मुझे 17 संदेश देना था, And how to speak. और कैसे मैं दूं। I went to the church. और मैं चर्च गई I heard the pastor preaching. और मैंने वहाँ पर पादरी को, Strength will come upon you. तुझे बल प्राप्त होगा Be able to finish the will of God. और तू प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकेगी। Hallelujah. हालेलुया। I fasted for 3 days. और मैंने 3 दिन उपवास I किया went there. Just like a lion, I stood और everywhere. शेर की तरह मैं वहाँ पर जाके खड़ी हुई People are wondering. और सब लोग सोच रहे थे, Women's group were strengthened. और जो महिला की जो समूह थे सब बलवंत And हुए, one lady, higher up in the society, she came और एक सम्मानीय महिला आई to preside over the meeting. और वो उस सभा में आई She was sitting there. और वो वहाँ बैठी थी She will never go to any meeting. और वो कोई सभा में नहीं जाती थी। That day she was there. उस दिन वो वहाँ पर थी, Just introduced me उससे मेरा परिचय कराया and spoke a few words. और कुछ शब्द मेरे बारे में, And the man who was conducting the meeting said she और will वह leave व्यक्ति now. जो सभा को चला रहा था उसने कहा कि अभी ये महिला यहाँ से चली जाएगी, But she परंतु never वो left. वहाँ से नहीं गई She was और वो sitting वहाँ there. बैठ गई They gave me time to preach. और फिर मैंने संदेश शुरू किया, Preached, संदेश दिया, prayed, प्रार्थना किया, finished everything. सब कुछ खत्म किया Still she was sitting there. और वो वहीं पे बैठी थी। Such a high level sister. उतनी सम्मानीय महिला, She was the president's और wife. वो वहाँ उस देश की राष्ट्रपति की पत्नी थी She will never go to any और meeting. वो किसी सभा में नहीं जाती थी। But she said, उसने कहा I am not able to मैं leave. यहाँ से जा नहीं पा रही Something is happening. और कुछ मेरे जीवन में हो रहा Something is है, happening. कुछ हो रहा है। She was there to the last message or prayer or everything. और सभा के संदेश प्रार्थना सब खत्म होने तक बैठी थी I have to put her in the car. और मैंने उसको कार में बिठाया Second day she sent out many people go and see the meeting. और दूसरे दिन उस महिला ने कई लोगों को इस सभा में आने के लिए कहा। Who has done that? किसने किया? Jesus. यीशु। The power of God. और प्रभु की सामर्थ, Same power the Lord says, I will give you my daughter. प्रभु कहते कि वही सामर्थ मेरी बेटी मैं तुझे भी दूंगा, Every one of you. आप प्रत्येक जनों को। Hallelujah. हालेलुया। Clap offering, give the Lord. आइए ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now read last verse. Isaiah 60 verses 1 to 3. अभी यशायाह 60 1 से 3 तक वचन को पढ़े। It says, arise, shine, for your light has come. उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है And the glory of the Lord is risen upon you. और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय For हुआ है। behold, the darkness shall cover the earth, and deep darkness cover the people. देख पृथ्वी पर जो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, But the Lord will arise over you, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा and His glory will be seen upon you. और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। This is what is going to happen to every one of you. और आप प्रत्येक जनों के जीवन में ऐसा ही होगा। When you read these verses, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, rise, shine, प्रभु के जो प्रकाश है for my light has come, और मेरा प्रकाश आ गया and the glory of the Lord is risen upon me. और यहोवा का जो तेज है मेरे ऊपर उदय हुआ है That darkness shall cover the earth, और अंधियारा पूरे पृथ्वी को घेर लेगा, but the Lord will arise over me. परंतु यहोवा मेरे ऊपर उदय होगा। Hallelujah. हालेलुया। And read
5th और verse, 5वें वचन को पढ़िए, you shall see and become radiant, तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख and चमकेगा, your heart shall swell with joy. तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा। This is what is going to happen. और यही आपके जीवन में होगा। Every one of you is going to shine for the glory of God. और आप में से प्रत्येक जन प्रभु की महिमा के लिए चमकेंगे। But before that, इसके पहले check up your life. अपने जीवन को Whether you परखिए, have given your heart to the Lord. क्या आपने अपना हृदय प्रभु को दे दिया Whether you है? are out of all the sins and sinful activity. क्या आप पाप और पाप के कार्य से बाहर निकल चुके हैं? Still you are in darkness or in light. क्या आप अंधकार या प्रकाश में हैं? Or whether you have received the Holy Spirit without measure. क्या आपको पवित्र आत्मा अत्यधिक रूप से मिला है? And thirdly, whether you are ready to arise and shine for the glory. तीसरा, क्या आप प्रभु की नाम की महिमा के लिए उठकर चमकना चाहते हैं? Hallelujah. I हालेलुया। have told what the Lord told me to tell you. और प्रभु ने आपसे जो कहने के लिए कहा मैंने कह दिया है। You have a real burden to bear these things. अगर आपके मन में सच्चा बोझ है इस सब को उठाने के लिए, Keep this as a burden. इसको बोझ के रूप में रखिए Spend much time in the feet of God. और प्रभु के चरण में ज्यादा समय बिताइए Close communion with Him. और प्रभु के साथ निकटतम सहभागिता Receive रखिए the power of God without measure. और प्रभु की सामत अत्यधिक रूप से प्राप्त And कीजिएगा। ask Him and speak to Him. What is your will, Father, और today? प्रभु से पूछिए और मांगिए कि उनकी इच्छा आज के दिन के लिए क्या है Fulfill His will. और उसकी इच्छा को पूरा कीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Lord will use you as He wants you to be used. प्रभु आपको उस तरह से इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से वो चाहते हैं इस्तेमाल करना। My dear friends, shall we pray? मेरे प्यारे मित्रों, आइए हम प्रार्थना करें। Our precious Heavenly Father, हमारे बहुमूल्य प्रेमी स्वर्गीय पिता, thank you, Lord, you are here in our midst. धन्यवाद प्रभु, आप हमारे बीच में हैं Wherever 2 or 3 are gathered in my name, there am I, you have promised. और आपने वायदा किया है जहाँ पे 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में आप हैं। Thank you, Lord, for your presence. धन्यवाद प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए। Lord, your children are so anxious to receive your blessing today. और प्रभु आपकी संतानें बड़ी ही व्याकुलता से आज आपकी आशीषें पाने के लिए इकट्ठा हुई हैं। First of all, take away all the darkness in their lives, प्रभु सबसे पहले इनकी जिंदगी के हर एक अंधकार को इनसे दूर करें, all the agony. हर एक पीड़ा को। They may be going through afflictions, प्रभु ये बहुत ही दुख के दौर से जा रहे हैं, tribulations, सताव के दौर से जा रहे हैं trials, और परीक्षाओं के दौर से and so many hard path, Master. और कई कठिन रास्तों से ये जा रहे हैं And so much of hard path, Master. और बहुत ही कठिन रास्ते से जा रहे हैं But you are स्वामी। God Almighty. लेकिन आप तो सर्वशक्तिमान You are God परमेश्वर हैं। Almighty. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर Come हैं। with all the majesty. अपने पूरे वैभव के साथ आ जाएं Remove every heartache, और हर एक इनके हृदय की पीड़ा दूर करें every hard path. और हर एक कठिन मार्ग को दूर करें Make it a soft one. और प्रभु से नरम बना दें Let them have peaceful life. और होने दे प्रभु इनका जीवन शांति से भरा हो। If their home is broken, यदि इनका घर टूटा है Lord, unite them together in a mysterious way, miraculous way. और प्रभु एक अद्भुत और चमत्कारिक तरीके से इनके टूटे परिवार को एक कर दें Right now, let the power of God do this miracle. और होने दे इसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य चमत्कार करे। Let all the misunderstandings between husband and wife, between people in the family, be cursed in Jesus' name. और हर एक ऐसा मनमुटाव जो कि पति पत्नी के बीच में या परिवार के आपस में गैर समझ हुआ है प्रभु निकल जाए। Give them a face, a character like you, Father. और प्रभु इन्हें एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा चरित्र दे जो आपके समान हो। Let everyone be transformed just like you और प्रभु ताकि हर एक व्यक्ति आपके समान बदलता चला जाए into your holy image. और आपके पवित्र स्वरूप में बदले। Bless them, Lord. प्रभु इन्हें आशीष दें। Let them enjoy their family life. होने दे प्रभु ये अपने पारिवारिक जीवन का आनंद लें All the young ones, let them enjoy your peace and joy and blessings in their own lives. और इन जितने भी जवान हैं वो अपने जीवन में आपके आनंद, शांति और आपकी उपस्थिति का आनंद उठाएं। Lay thy mighty hand upon each and everyone. प्रभु इनमें से हर एक के ऊपर अपने सामर्थ्यशाली हाथ को रखें। Those who are suffering with all kinds of diseases, वे लोग जो हर प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं, I curse every problem. हर एक समस्या को हम श्रापित करते हैं। Problem in the heart, इनके हृदय में समस्या problem in the kidney, और इनके किडनी में in the बीमारी, liver, कलेजे में बीमारी in the legs,
पैरों में बीमारी, Lord, all over the body, और सारे शरीर की बीमारी, wherever they have the problem, जहाँ कहीं इनके शरीर में let बीमारी the है, power of God heal them. परमेश्वर की सामर्थ्य से चंगाई दे दे, Heal, Master. चंगाई दे प्रभु, Heal all the skin diseases हर एक चमड़ी की बीमारी को चंगाई दे, from head to foot. सिर से लेकर पांव तक। Let them be delivered. छुट ये होने दे प्रभु, ये चंगाई पाए, Give them peace and joy, इन्हें शांति और आनंद दे, just like David. जिस प्रकार से दाऊद के समान Let them also enjoy your presence, ये भी अपने जीवन में आपकी उपस्थिति का आनंद लें, the presence of the Almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति। Thank you, Lord, for hearing this prayer धन्यवाद प्रभु ये प्रार्थना सुनने के लिए and answering it. और इसका उत्तर देने के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन, Amen. आमेन।